everyone, how's everyone? सब कैसे हैं? I hope you all are great and safe. आप सब अच्छे हैं और safe हैं. So today we are going to learn a new story, that is the hunter and the pigeons. आज हम एक नई स्टोरी सीखेंगे, that is the hunter and the pigeons. Pigeons. Okay. So this is a hunter. Hunter कौन होता है? शिकारी, जो कि शिकार करता है birds and animals का. So these are pigeons. Pigeons कौन होते हैं? कबूतर. So this story has been given on page number on book number 7. आप book number 7 open कर सकते हैं. Page number 9192. That is given here. You can see there is written the hunter and the pigeons. Hunter or pigeons. You can see this hunter. This hunter, he is a shikari, and you can see the pigeon. And on the next page, you can see the image. There are few pigeons who are sitting on the net. इस net के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ खा रहे हैं. I think बीज खा रहे हैं. Okay. On the next page, you can see these pigeons, and one of them is wearing a crown. इनमें से जो एक है उसने क्राउन पहना हुआ है और बाकियों ने तो नहीं पहना है. It seems like he is a head pigeon. ऐसा लगता है ये इन pigeons का सरदार है, इनका head है, और ये pigeons इस net के साथ ही उड़ रहे हैं. On the next page we can see these pigeons are standing next to rat. ये लोग rat के साथ ही खड़े हैं, and these rats are cutting the net. ये rat मिलके उस net को कट कर रहे हैं. And on the next page you can see these pigeons are flying freely. अब यहाँ पे net नहीं है, ये लोग freely fly कर रहे हैं और ये लोग बहुत happy लग रहे हैं. They all seem to be very happy. So now we have got some idea about this story. अब हमें समझ में आया कि story में है क्या. Okay, ma'am will tell you what is there in the story. Basically there are three characters in the story. First one is hunter. Second one is the pigeons, and the third one is rat. Okay. So once, एक बार की बात है, there were few pigeons living on a banyan tree, जो कि banyan tree पे रहते थे. banyan tree क्या होता है? That is बरगद का पेड़. कुछ कबूतरों का झुंड एक banyan tree पे रहता था, and they all were very hungry. एक दिन क्या हुआ, ये बहुत ही भूखे थे, and they were trying to find the food for them. ये लोग खाना ढूंढ रहे थे और खाना ढूंढने की तलाश में they all fly away. ये सब उड़ के गए. Okay, so when they were flying, they saw few grains scattered on the ground. इन्होंने देखा कि जो बीज थे वो जमीन पे फैले हुए थे. So in order to pick them up, उनको उठाने के लिए they all flew down. ये नीचे गए उनको उठाने के लिए. But लेकिन क्या हुआ? They all got trapped. ये लोग क्या हुआ? ये लोग सब लोग मिलके फंस गए. ये लोग एक जाल में फंस गए जो कि इस हंटर ने फैलाया हुआ था. इस हंटर ने एक जाल फैलाया था इन कबूतरों को पकड़ने के लिए. ठीक है. तो ये they all were very scared. क्या था? ये बहुत डरे हुए थे, because they knew, इनको पता था the hunter is going to kill them, कि हंटर उनको मार देगा. But इनमें से जो एक सरदार था, जो एक सरदार पिजन था जिसने क्राउन पहना हुआ था, that is him. You can see him. Okay, ये जो सरदार पिजन था, head pigeon, told them to not to be scared. इन्होंने बोला कि आप डरो मत. Okay, we all will fly away. हम सब मिल के उड़ेंगे with this net only. इस net के साथ ही. तो ये सब जब उड़े इस net के साथ, तो it was very difficult for them to fly with this net. इनके लिए बहुत मुश्किल था इस net के साथ ही उड़ना. But still they all tried. तो फिर जो ये pigeon था, head pigeon, जिसने crown पहना हुआ है, इन्होंने फिर से इसको आइडिया दिया कि चलो एक मेरा एक फ्रेंड है, दैट इज रैट. इनका एक फ्रेंड है रैट, उसके पास चलते हैं, वो हमारी हेल्प करेगा इस नेट को कट करने में. इस नेट को कट करने में वो हमारी हेल्प कर देगा. ओके, बट दे ऑल फ्लाई एंड दे विजिटेड दिस रैट. ये सब उसके पास गए. दे आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिम. इन्होंने उससे हेल्प मांगा. प्लीज हेल्प अस इन गेटिंग फ्री फ्रॉम दिस
नेट, इस नेट से हम फ्री हो जाएं। सो दिस रैट कॉल्ड अप हिज अदर फ्रेंड्स, इसने अपने दूसरे फ्रेंड्स को बुलाया टू कट द नेट, इस नेट को कट करने में। तो इसने जो नेट है कट की अपने और फ्रेंड्स के साथ। एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उसके बाद, ये जो नेट था वो हट गया एंड दे ऑल गॉट फ्री। ओके, दे ऑल गॉट फ्री, ये सब फ्री हो गए उस नेट से, अब ये आजाद हो गए हैं। सो दे ऑल सेड थैंक यू टू दिस रैट, इन्होंने इसको थैंक यू बोला कि हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इसमें से रिलीज किया। एंड दे ऑल फ्लू, ये सब क्या हुआ, उड़ गए। दे ऑल वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। ओके, सो इस स्टोरी में हमने एक चीज देखा कि जो अगर ये लोग मिल के डिसीजंस नहीं लेते तो ये लोग हंटर की ट्रैप में फंसे रहते, जो हंटर ने जाल फैलाया था उसी में फंसे रह जाते अगर ये लोग मिल के डिसीजन नहीं लेते। तो इन्होंने डिसीजन लिया मिलकर, यूनाइटेडली, एकता के साथ, और उसके साथ ही ये लोग जीत भी गए और रिलीज हो गए उस ट्रैप से। ओके, फिर हमें इससे मॉरल मिलता है, हमें एक लर्निंग मिलती है स्टोरी से, दैट यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम एकता के साथ कोई काम करते हैं तो हम उस पर डटे रह पाते हैं, चीज करने में, कोई भी चीज करने में हम उस पर डटे रह पाते हैं। बट वेन वी डिवाइड वी फॉल, जब हम अलग अलग होते हैं हम गिर जाते हैं, हम उस चीज को नहीं संभाल पाते। सो वी ऑलवेज यूज टू डू द थिंग्स यूनाइटेडली। आई होप आप सब मिलके एकता के साथ कोई काम करेंगे, यूनाइटेडली काम करेंगे, कभी भी डिवाइड होके काम नहीं करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी दैट इज गिवन ऑन द बुक। अब मैं रीड करूंगी स्टोरी और उसका आपको मीनिंग बताती जाऊंगी। सो यू हैव टू रीड अलोंग विद मी। ओपन द बुक, पेज number 9 to 92. So open book number 7, that is and 92 page number. So there is written, once there was a flock of pigeons. एक बार की बात है कि एक झुंड, फ्लॉक मतलब झुंड, पिजन्स का रहता था, दैट लिव्ड इन अ बनियन ट्री, जो कि एक बनियन ट्री पे रहता था, बरगद के पेड़ पे। वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक बार की बात है कि जो पिजन्स हैं वो खाने की तलाश में उड़ रहे थे। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। उन्होंने काफी सारी ग्रेन्स फैले हुए देखे ग्राउंड पर। दे फेल्ट वेरी हैप्पी, उन्होंने बहुत ही खुश फील किया। एंड फ्लू डाउन टू पिक द ग्रेन्स, वो नीचे उड़ के गए उन ग्रेन्स को उठाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुखद की बात है, क्योंकि जब अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है कि ये दुख करने वाली बात है। इट टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रैप, वो एक ट्रैप निकला, लेड बाय अ हंटर, जो कि इस हंटर ने एक ट्रैप डाला था, वो ट्रैप निकला। ऑल द पिजन्स वर ट्रैप्ड इन अ नेट, जितने भी पिजन्स थे सब नेट में ट्रैप हो गए, फंस गए। द पिजन्स वर स्कैर्ड, जो पिजन्स थे दे वर स्कैर्ड, डरे हुए थे। दे न्यू दैट दे वर गोइंग टू डाई, उनको पता था कि अब वो हंटर उनको मार देगा। बट द वाइज लीडर, जो कि समझदार एक लीडर था जिसने क्राउन पहना हुआ था, ऑफ द पिजन्स टोल्ड देम, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। इफ वी ऑल फ्लाई टुगेदर, जब हम सब मिलके उड़ेंगे, विद द नेट, नेट के साथ, वी कैन एस्केप, हम बच सकते हैं। द पिजन्स फ्लू टुगेदर, जो पिजन्स हैं उनके साथ उड़ के गए, एंड वर अनेबल टू फ्लाई विद द नेट, जो उनको बहुत दिक्कत हो रहा था उस नेट के साथ उड़ने में। द हंटर वाज सरप्राइज्ड टू सी द पिजन्स फ्लाइंग अवे, जो हंटर था वो बहुत ही हैरान था, सरप्राइज मतलब हैरान था उन पिजन्स को उड़ता देखकर। आई हैव एन ओल्ड फ्रेंड हु कैन हेल्प अस, ही इज अ रैट, लेट अस ऑल गो देयर, जो सेट द लीडर ऑन द वे, जो लीडर था जिसने क्राउन पहना हुआ था, उसने बोला कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है जो कि रैट है, जो कि रैट उसका ओल्ड फ्रेंड था, तो हम सब उसके पास जाते हैं हेल्प लेने के लिए, वो हमारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, what did they do? He led them to the friend's place. वो उनको उसके अपने फ्रेंड के प्लेस पे ले गया, जो कि रैट की प्लेस पे ले गया। द लीडर कॉल्ड आउट हिज फ्रेंड, जो लीडर है उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, प्लीज कम, एंड ही केम आउट ऑफ हिज होल, जो रैट है वो अपने होल से आया बाहर। सीइंग हिज फ्रेंड एंड द पिजन्स इन ट्रबल, अपने फ्रेंड को और पिजन्स को ट्रबल में देखकर, द रैट कॉल्ड हिज फोक्स, रैट ने अपने और साथी रैट्स को बुलाया। ऑल द रैट्स केम आउट ऑफ देयर होल्स, जितने भी रैट्स हैं सब अपने होल से बाहर आए।
and worked on the net. उन सब ने नेट पे काम किया, मतलब उसको कट करना शुरू किया. They cut the threads of the net with their sharp teeth. उन्होंने अपने तेज धार वाले दांतों से उस नेट के जो धागे हैं उसको कट करना शुरू किया. और उनको जब कट कर दिया, they all got released. In no time the pigeons were free. और जैसे ही उन्होंने कट किया वो सब फ्री हो गए. They were very happy. वो बहुत ही खुश थे. They thanked the rats and flew home. उन्होंने धन्यवाद किया रैट का and उड़ गए अपने घर की तरफ. So I hope you all will be reading it at your home again, and you must have liked this story. I hope it was very interesting and you liked it. So I request you to read it once in your home so that you can again get better and understand it in a more better way. So thank you so much. Have a great day.